Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear PhD candidates, Assalamu alaikum. My today's lecture is for PhD candidates, and today we will discuss about the central neurotransmitters. As we are going to discuss the CNS pharmacology, so it is very, very important that you have a better idea of central neurotransmitters. As you have already studied in your previous classes, in your MPhil, in your masters, in your different courses, now in PhD, it's important to go into the detail of the central neurotransmitters, and initially a basic revision is also required. Okay. So my students, you can see that these are the important neurotransmitters. You know very well that neurotransmitters are actually those agents which are going to transmit the signals of the brain from one area to two area, and there are majorly there are two type of the neurons. If you see, one is the presynaptic and second is the postsynaptic, and that neurotransmitter is released from the presynaptic into the definitely into the synapse, and from postsynaptic that will be released into the effector organs or into the receptors. Okay. So this one is the capson, और ये 11th edition है, that is also shared on your LMS, and इसमें ये मैंने chapter number 21 I have opened here, and there is a discussion about this anti-neurotransmitter. You can also go to Goodman and Gilman or other books, for example Van and Dale. They're also very good, but Captain is also a comprehensive and a good book. Okay. So as per this chapter, you can see that these are the small molecules which are isolated from the brain, and different approaches suggest that these agents which are mentioned here in the table 21AC, they are actually the neurotransmitters, because there are certain criteria about the neurotransmitter. If we go here, you can see that there are certain criteria about the neurotransmitter, that it must be synthesized. These are the neurons. So neurotransmitters, they are synthesized inside the neuron, and they are stored in the neuron, and they are released also. So their localization, they are released, and then they if they are administered exogenously, then they will also produce the effects just like that, the endogenous type of the neurotransmitter. ठीक है. तो ये सब वो बेसिक बातें हैं विच यू नो वेरी वेल, कि वो न्यूरोट्रांसमीटर वो है जो न्यूरॉन के अंदर ही बनेगा, न्यूरॉन के अंदर ही स्टोर होगा, वेसिकल्स के अंदर, और अगर आप एक्सोजीनसली देंगे तो फिर वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि ऑलरेडी वो प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है. और साइट्स ऑफ ड्रग एक्शन अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से देखें, so these are the stages. Number one, where the entry, then there is synthesis, then there is storage, then there is metabolism. All these are the glia cells, and then they are finally released. These are the postsynaptic receptors. There they can bind, and there could be the uptake, then there could be degradation. They can also enter into the glia cells. You go through it, और इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो इट वुड बी मच बेटर. तो अब हम एक्चुअली अपने सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर्स को आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड यू कैन सी दैट दिस इज एसिटाइलकोलिन. there is the anatomy of all these neurotransmitters. Then their receptor subtype, you know that muscarinic receptors हैं, but are there agonists, what are their antagonists, and their mechanism, if they are excitatory, how they are excitatory, because they decrease the potassium conductance, increase the IP3 and DAG. They are also responsible to increase the potassium conductance and decrease cyclic AMP when they are inhibitory. For example, at M2 muscarinic receptor. Okay. So आप इनको पढ़ लीजिए, और यू आर PhD कैंडिडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप यहाँ से बहुत अच्छा इसको देख सकते हैं कि इन चीज़ों को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. ओके, दैट्स गुड. आगे चलते हैं. आगे मूव कर रही हूँ. डोपामीन. डोपामीन के रिसेप्टर्स, डोपामीन की लोकेशन, आप इसको गो थ्रू कर लीजिए. मैकेनिज्म, गाबा को देख लीजिए. देन देयर इज ग्लूटामेट. आगे हम इसको वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं. ग्लाइसिन. ठीक है. ग्लाइसिन इज ऑल्सो द इनहिबिटरी.
एंड इसके अलावा नॉरेपिनेफ्रिन, हिस्टामिन और कुछ ओपियोइड पेप्टाइड्स हैं हमारे पास, टेकिकाइनेंस हैं जो प्राइमरी सेंसरी होते हैं, इनके वन इनके रिसेप्टर्स हैं जैसे सब्सटेंस पी है। इसके अलावा एंडोकैनाबिनॉइड्स, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? दैट्स गुड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कैटेगरी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर इज ग्लूटामेट। ग्लूटामेट इज बेसिकली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होता है एंड दैट इज रिलीज्ड इनटू द सिनेप्टिक क्लफ्ट बाय calcium dependent exocytosis, and you people can see here that this glutamine is converted into glutamate. This one is neuron, and at the time of need this one is released here, and this is also uptaken by the glia cell where glutamine synthetase also convert glutamine into glutamine, and this glutamine is also recycled, and these are the receptors AMPR और NMDA रिसेप्टर्स, इनके इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होते हैं, कैल्शियम सोडियम चैनल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इनकी मैकेनिज्म को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, और दिस इसको आप रिपीट करें और ये आपका रिविजन भी हो जाएगा और दोबारा से गो थ्रू भी हो जाएगा, ठीक है। यू पीपल नो दैट दे आर, जो इनके आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स यू नो दैट ये वो यूजुअली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ग्लूटामेट के वो 3 टाइप के हैं। AMPA रिसेप्टर बेसिकली अल्फा अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल आइसोक्साजोल प्रोपियोनिक एसिड है। काइनिक एसिड और NMDA रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एन मिथाइल डी एस्पार्टिन, ओके। और ये कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम के इनफ्लक्स से एसोसिएटेड है। किस तरह से ये इन्वॉल्व होते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप जरूर देख लीजिए, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट है गाबा एंड ग्लाइसिन। गाबा एंड ग्लाइसिन को अगर आप देखें तो बोथ आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर which are typically released from the local interneurons. Interneuron that release glycine are restricted to the spinal cord and brainstem, whereas interneuron releasing GABA are present throughout the CNS, including the spinal cord. So it is interesting that some interneuron in the spinal cord can release both GABA and glycine. This point is very important. So I don't know whether you know about it or not, but this is very interesting that interneuron in spinal cord can release both the GABA as well as the glycine. And glycine receptors का structure pentameric होता है। Strychnine, which is a potent spinal cord convulsant है, वो बहुत सारे केसेस में रैट पॉइजन में यूज होता है, जो कि सिलेक्टिवली ग्लाइसिन को ब्लॉक करता है। आप एज ए PhD कैंडिडेट ये ज़रूर देखिएगा कि अब कौन से न्यू मॉडल्स जो हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पर काम कर रहे हैं in animal models. And this is also very obvious that GABA receptors are divided into 2 categories, GABA A as well as GABA B, and they both are ionotropic receptors. Both are inhibitory receptors. They are responsible for inhibitory potential, but important thing is that fast component is usually mediated by the GABA A, whereas slow component is mediated by GABA B. This point is very important, okay? इसके अलावा एसिटाइलकोलिन। अच्छा, एसिटाइलकोलिन के हवाले से एक ख़ास बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि दिस वाज द फर्स्ट फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर विच वाज आइडेंटिफाइड इन द CNS। रैंशो सेल्स जो हैं वो भी एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं निकोटिनिक एगोनिस्ट के, वहाँ पर भी ये काम करते हैं। एंड यू नो दैट इसके मस्करानिक रिसेप्टर्स हैं, M1 है, M2 है, और स्पेशली आपके M1 जो हैं वो मीडिएट कर रहे होते हैं, इससे CNS में मौजूद हैं। एंड दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि इसमें पार्किंसंस में अगेन एसिटाइलकोलिन और डोपामीन का बैलेंस जो है वो अफेक्ट होता है। अल्जाइमर में भी देखें, यहाँ लिखा हुआ आ भी गया जो मुझे याद था कि अल्जाइमर में भी देयर इज अ प्रोफाउंड लॉस ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन। तो ये जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आप जरूर जहन में रखें, ओके। नेक्स्ट वी हैव द मोनोअमाइंस, और मोनोअमाइंस में आपके पास कैटेकोलामाइंस हैं, स्पेशली आपके पास एपिनेफ्रिन है और डोपामीन है और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जिसको हम सेरोटोनिन भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोपामीन। डोपामीन के रिसेप्टर्स देयर आर 5, D1, D2, D3, D4, D5।
और इनके क्या क्या D1 लाइक को हम D1 D5 कहते हैं, एंड D2 लाइक जो है वो D2 D3 D4 5 होते हैं। ऑल दे आर द मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पर दे आर एक्साइटेटरी, बहुत सारी जगहों पर दे आर इनहिबिटरी, और मोस्टली दे आर इनहिबिटरी इन द CNS, बट बहुत सारी जगहों पर ये एक्साइटेटरी भी हैं। इन लोकेशंस को जो ऊपर हमने एक टेबल डिस्कस किया है उसमें आप देख लीजिए। और नॉरएपिनेफ्रिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी है और CNS में भी है। तो आगे हम इंशाल्लाह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वी विल डिस्कस, you will see that there we will also see the detail of this norepinephrine or the epinephrine। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जो कि सेरोटोनिन है, इसको ये ख्याल किया जाता है, इसकी बहुत सारी सब टाइप्स हैं 5HT1 से लेकर 5HT7 तक। देन देयर आर अगेन द सब टाइप्स, फॉर एग्जांपल 5HT1 की एक सब टाइप 5HT1A है और 5HT1B, और इस तरह से ये देखें 5HT4 5HT2 सो ऑन है। खास बात इनके बारे में जो है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और वो ये है कि ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं कि ख्याल किया जाता है हेलुसिनेटरी इफेक्ट्स। ठीक है, पोटेशियम चैनल्स की ब्लॉकेट के जरिए काम करते हैं, और यहाँ हेलुसिनेटरी इफेक्ट के बारे में भी जरूर मेंशन होगा। ये देखिए हेलुसिनेशन, 5HT pathways may be involved in hallucinations induced by lysergic acid। ओके, अदर इनके जो रोल्स हैं वो स्लीप में, टेम्परेचर में, एपेटाइट में, न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल में, इन तमाम चीज़ों में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पेप्टाइड्स। आपको पता है कि पेप्टाइड्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और ख़ासतौर पर ओपियोइड पेप्टाइड्स की अगर हम बात करें तो यू हैव एनकेफेलिन एंड एंडोर्फिन, और ये अब ओपियोइड नहीं है, न्यूरोटेंसिन, सब्सटेंस पी, सोमेटोस्टेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जिसको VIP भी कहा जाता है, न्यूरोपेप्टाइड Y, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इज इट क्लियर? सो प्लीज गो थ्रू इट, और इनके इफेक्ट जरूर। सब्सटेंस P जो है बेसिकली पेन में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है इन द पेन पाथवेज, एंड यू कैन सी दैट दे आर पेन पाथवेज में सब्सटेंस P का इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जो कि अनरिलेटेड हैं पेन से, वहाँ पर भी इनके इन्वॉल्वमेंट है। The next one is the nitric oxide, and nitric oxide basically CNS contains a substantial amount of nitric oxide synthase. There is synthase, that it means that is going to be synthesized, which is found within certain classes of the neurons. And neuronal enzyme which is activated by calcium calmodulin and activation of NMDA receptor, which increase intracellular calcium. As a result, there will be the generation of nitric oxide. So nitric oxide synthase is basically involved in this nitric oxide synthase is involved in the generation of the nitric oxide, and nitric oxide best smooth muscles, and synaptic transmission and synaptic plasticity remains controversial. Perhaps the strongest case for a role of nitric oxide in neuronal signaling in the CNS is for long-term depression of synaptic transmission in cerebellum। ठीक है, ये ख्याल किया जाता है कि न्यूरोनल सिग्नलिंग जो CNS में हो रही है उसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की डिप्रेशन करवाता है सेरिबेलम के अंदर, यानी कि उसको डिक्रीज करता है और उसको फर्दर आगे नहीं जाने देता है, उसके करंट्स को डिप्रेशन या डिक्रीज करने का काम करता है। ओके, if we talk about the endocannabinoids, you can see tetrahydrocannabinol, THC is very very important. There are certain receptors CB1 CB2 yani cannabinol 1 and cannabinoid 2, these two type of the receptors इन पे ligand bind कर सकते हैं, again metabotropic receptors हैं। So activation of metabotropic receptor, example acetylcholine and glutamine can also activate the formation of 2AG। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनकी बातें हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, और इनके बारे में यानी जो हम एंडोजेनस कैनाबिनॉइड्स की बात कर रहे हैं वो ये है कि दे आर रिलीज फ्रॉम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड ट्रेवल बैक। यहाँ तक मैं कर लेती हूँ, ये देखिए ट्रेवल बैकवर्ड अक्रॉस साइनेप्सिस एक्टिवेटिंग CB1 receptor on pre-synaptic neuron and suppressing the transmitter release।
This suppression can be transient or long lasting depending on the pattern of activity. Cannabinoid may affect memory, cognition, pain perception by this mechanism. एक्चुअली होता ही है कि दो तरह के रिसेप्टर, जो इस बात को अगर मैं क्लियर करूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्री साइनेप्टिक और एक पोस्ट साइनेप्टिक। रिलीज ये प्री साइनेप्टिक से जब हो रहे हैं, पोस्ट साइनेप्टिक से रिलीज हो रहे हैं ये एक्चुअली, और वापस ट्रेवल कर जाते हैं। देखिए दो तरह के, मैं कोशिश करती हूँ इसको ड्रॉ करने की। एक मिनट में अगर इसको ड्रॉ कर सकूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक ये प्री साइनेप्टिक है और एक पोस्ट साइनेप्टिक। ये कैनाबिनॉइड्स जो हैं ये रिलीज तो यहाँ से हो रहे हैं, यानी पोस्ट साइनेप्टिक से, और वापस जा रहे हैं प्री साइनेप्टिक, ठीक है। और प्री साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर पे जाते हैं ये, उनके यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं वहां जाकर अपना एक्शन देंगे, और फिर यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज है ये उसको बेसिकली ब्लॉक करते हैं, डिक्रीज करते हैं, देखें सप्रेस करते हैं, ठीक है। और ये सप्रेशन ट्रांजिएंट भी हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि पैटर्न ऑफ एक्टिविटी है। तो दिस इज बेसिकली अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस। सो आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। आप इसको गो थ्रू कर लें, और एक काम ये ज़रूर करिएगा कि आप न्यू लेटेस्ट आर्टिकल्स खोल लें आपने, और उसमें ये ज़रूर सर्च आउट करना है कि जो अब फर्दर काम हो रहा है वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पर किस तरीके से हो रहा है, हाउ द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन एडवांस्ड रिसर्च ऑफ न्यूरोफार्माकोलॉजी। लेटेस्ट रिसर्च क्या हो रही है, लेटेस्ट पेपर में ज़रूर देखें और उसमें ये चीज़ चेक करें, बिकॉज यू आर PhD कैंडिडेट, तो आप रिसर्च ओरिएंटेड ज़रूर पढ़ा करें। और इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स का कोई इम्पोर्टेंट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आपको नज़र आती है तो वो आप ज़रूर देखना। ओके, गुड लक। और if you have any of the query or any of the problem, you may ask me anytime. You are welcome. Good luck students. Thank you and Allah Hafiz.